Already we're starting off with the mensuration worksheet. इसमें basically we've got some or 28 questions of the last decade जो मुश्किल तरीन सवाल है. तो we're gonna be solving these in probably 2 या 3 parts. तो multiple videos आपको नज़र आएंगी एक ही playlist के अंदर. और इनके solutions ये मैं upload हमने कर दिए. And you can download the PDF form or print it out so that you can practice it, and once you do not get the solution फिर आप ये video देख लें. Alright, what are we supposed to do in this question, Hamza? Total surface area is equals to the surface area of the largest sphere plus the surface area of the smallest sphere Okay. plus the surface area of the largest circle minus the surface area of the smallest circle. Perfect. तो basically what you're saying is कि जो largest sphere है, largest sphere भी नहीं, larger hemisphere I guess, because that's half of a sphere, right? और ये small भी hemisphere है, because that is also half of a sphere. और जब आप larger Yes, sir. circle minus smaller circle कहते हो तो basically I think what you're referring to is this part. जो large circle तो हो जाएगा ये वाला. और इसमें से जब हम स्मॉल सर्कल माइनस कर देंगे, स्मॉल सर्कल है हमारा ये वाला अंदर वाला, तो व्हाट पार्ट वुड वी बी लेफ्ट विद दिस पार्ट विच हैज़ बीन स्लाइटली शेडेड. तो इससे हमारा तमाम सरफेस एरिया आ जाएगा. तो कैन यू वॉक मी थ्रू द स्मॉल सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर सरफेस एरिया. 2 pi into 8 square because the diameter is 18, 20 minus 2 and we'll divide it by 2, we'll get 8. ठीक है, 2 पाई 8 स्क्वायर. मैं ये व्यूअर्स के लिए यहाँ से मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कि कंप्लीट 10 है. और तो यहाँ से यहाँ के कितना होगा 8, बिकॉज जो आउटर रिम है दैट्स 2. तो दिस इज 8 फ्रॉम हेयर टिल हेयर. तो वी कैन बी यूजिंग दैट एज रेडियस. व्हाट डू वी गेट फॉर दैट? व्हाट्स द आंसर? 128 pi. 128 पाई. एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ लार्ज हेमिस्फेयर? 2 pi into 10 square. 2 पाई 10 स्क्वायर. सेम फॉर्मूला. एंड वी गेट 200 पाई. Yes, sir. अब ये वाला कैसे आएगा? We'll use the formula of area of circle pi r square. तो ओके. और उस पाई आर स्क्वायर में जो ज़रूरी चीज़ है कि वंस वी नीड टू नो कि एक दफ़ा कैपिटल आर के साथ लिख दो, एक दफ़ा स्मॉल आर के साथ लिख दो, दैट टेल्स द एग्जामिनर कि आप एक दफ़ा रेडियस यूज़ करें वो बड़ी वैल्यू है विच इज़ 10 यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर दूसरी दफ़ा यूज़ करें वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, दैट्स 8. सो पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 8 स्क्वायर, Yes, sir. दैट कम्स आउट टू बी 100 पाई माइनस 64 पाई. Yes, sir. How much is it? 36 pi. 36 pi. If you add up all these values first, second and third, what do we get? 364 pi. 364 pi. And that is how you're going to show it. Not like this, arrows नहीं लगाने. आपने एग्जाम में प्रॉपरली इसको इक्वेशन बना के लिख के दिखाना है. चलें जी, perfect. The second question is the perimeter of a regular hexagon is equal to the perimeter of a regular octagon. Each side of the octagon is 9 centimeter. Octagon की कितनी sides हैं? 8. 8. और hexagon की Hexagon has 6 sides. 6. तो क्या क्वेश्चन में अगर हम इजी अल्फाज में पूछें तो क्या कह रहा है ये? We have to find the length of one edge of hexagon. चलो ये भी सही है. ठीक है, One side. इक्वेशन क्या बनेगी? First, we'll multiply 9 with 8 to find the to find the perimeter of the octagon. तो टोटल कहने की जरूरत नहीं है. पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन इज 9 into 8. 9 into 8 which is 72. What else? Yes. Now we'll divide 72 by 6 because hexagon has 6 sides and we'll get the length of each side. तो Each edge. length of one side of hexagon is equal to the same value because the perimeter or the perimeter of both the sides of both the shapes is same. So 72 divided by 6, what do we end up with? 12. 12. ये एक बेसिक सी शेप है. बेसिक नहीं, इसको कहते हैं कॉम्पाउंड शेप. कॉम्पाउंड शेप. इस कॉम्पाउंड शेप का उन्होंने एरिया हमसे पूछा है. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? First we'll divide it into 3 shapes. Little bit, hold on, Hamza. Let me define what a compound shape is. Compound shape is a shape made up of two or more basic shapes. Triangle, rectangle का combination होगा, या triangle या rectangle और वो क्या कहते हैं, सेमी सर्कल का combination होगा. तो इसका एरिया निकालने के लिए आप कह रहे हो कोई डिवाइडेड इनटू टू बेसिक शेप्स. आप बताओ क्या करेंगे?
Find the area of rectangle plus the area of triangle. What is the area of rectangle? 4 into 15. 4 into 15. Well done. And area of triangle? 1 by 2 into 8 into 6. 1 by 2 into 8 into 6. ये 8 और 6 कहाँ से आया? 8, 12 minus 4 is 8 because we only need the required part. And ठीक है 15 minus 9 is 6. ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये 9 है, ये ऑलरेडी गिवन, और ये रह गया 6, बिकॉज उसकी ऑपोजिट साइड 15 है तो उसको हमने माइनस कर लिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेंटागन कितना हो गया? दैट 60 प्लस 24, Yes, 84 84 centimeters square. centimeter square. What is the perimeter of the pentagon going to be? First, we'll find the missing side using Pythagoras theorem. Okay, तो we have, I write down the sides, we have 8 and 6, इसका hypotenuse कितना होगा? Hypotenuse is unknown. Okay, तो can we use 6 and 8 to find the hypotenuse? Yes, How much is it going to be? 10. 10, क्योंकि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और उसका होल अंडर रूट लें तो दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज़ 10। तो 10 आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। पेरीमीटर में व्हाट डू यू डू? यू ऐड अप ऑल द साइड्स। Yes, sir. 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 15, व्हाट डज इट कम आउट टू बी? 50. 50। ठीक है, पार्ट बी, a sphere has a volume of 2572, find the radius of the sphere। The volume is given. We'll use the formula ओके, to find the radius. the volume is 2572 and the formula is 4 over 3 pi r cube। तो बेसिकली इट्स एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, राइट? Yes, sir. 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 नीचे आके डिवाइड होगा, और पाई से भी डिवाइड करेंगे, पाई भी यहाँ के डिवाइड होगा। तो आई राइट डाउन द स्टेप, एंड 4 पाई डिवाइड होगा और ये आर क्यूब की इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एवरीथिंग दैट इज इनसाइड ऑफ इट, एंड वी एंड अप विद 8.49. 8.49। कोई और वैल्यूज़ भी हैं इसकी थर्ड डेसिमल प्लेस पे? 8.499. 499, and since we're supposed to round it off to three significant figures, क्या हो जाएगा? 8.5. 50, बिकॉज जो ज़ीरो भी है ना आफ्टर नॉन ज़ीरो नंबर, वो भी सिग्निफिकेंट होता है। ओके, surface area of the cuboid, any particular formula or do we just start by calculating each side and then adding them up? Formula 2 brackets length width plus length height plus width height. ठीक है, लेंथ विड्थ क्या है? Length is 22.5, width is 6. ओके, Height is 2. all right, and once we add all of these values together, what answer do we get? 384. Exact? Yes. All right, ठीक है जी। A cube of side x or edge x has the same surface area as a cuboid. Form an equation in x and solve it to find the length of the edge of the cube. सबसे Surface पहले हमजा area. इसको अगर हम इजी वर्ड्स में डिफाइन कर लें उर्दू में ही, तो क्या कह रहा है? So we have to find the length of each side of a cube. तो हमने क्यूब वो होता है जिसकी तमाम साइडें बराबर होती हैं, उसकी एक Yeah. साइड निकालनी है, और उसकी लेंथ कितनी है x आगे? The surface area formula for a cube is 6x square and the surface area is already given, How much is it? equal to the surface area of cuboid which is 384. ओ, तो प्रीवियस पार्ट का आंसर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस क्यूबॉइड के बराबर है इसका सरफेस एरिया, और वो 384 था, तो अगर हम उसको नीचे ले आए 384 को, तो वो यहाँ इनपुट कर सकते हैं, राइट? सो 384 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 384 डिवाइड बाई 6 is 64. ठीक है, और 64 का हम स्क्वायर रूट लेंगे और हमारी वैल्यू 8 आएगी। यही आंसर है। Yes, sir. तो ये 8 हर लेंथ की हर क्यूबॉइड एज की लेंथ है।
एक क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, दैट्स बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट जो शेडिंग का होता है कि शेडेड एरिया निकाल के दें। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? First, we'll convert millimeter square into centimeter square because we have to give answer in centimeter हाउ square. मच इज इट गोइंग टू बी? 0.85 centimeter square. सो बेसिकली यूर सेइंग वी सपोज टू डिवाइडेड बाय 100, राइट? Yes, sir. ठीक है। अब Then area of rectangle minus area of triangle, which will give us the area of the shaded एरिया ऑफ region. रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड दैट्स 9 माइनस 0.85। Yes, sir. 8.15 centimeter square. तो आई थिंक मोर देन मेंसुरेशन दिस क्वेश्चन हैड टू डू विद कन्वर्जन्स। आपको कन्वर्जन चार्ट आना चाहिए, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर एंड किलोमीटर स्क्वायर। इनको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे होता है। बेसिकली दिस इज़ डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 10,000, डिवाइडेड बाय 10,000, एंड ये भी डिवाइडेड बाय 100। तो टू ज़ीरोज़, फोर ज़ीरोज़ इन टू, 2442। दिस इज़ वन ऑफ द रूल्स टू रिमेंबर इट बाय। और जब ऑपोजिट आप जा रहे हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यू कैन हैव द सेम वैल्यूज बट विद मल्टीप्लाई साइन। तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10,000, मल्टीप्लाई बाय 10,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? We'll find the first we'll find the angle of the major sector, 360 minus 80. Then we'll use the formula area of a sector, theta over 360 into pi square. ठीक है, दिस एंगल इज 280 आई गेस। Yes, sir. अब मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर किसे कहते हैं? मेजर सेक्टर वो होता है जब आपने स्लाइस एक पिज़्ज़ा का निकाल लिया है, तो जो पीछे पिज़्ज़ा बच गया उसको मेजर सेक्टर कहते हैं। और जो जो छोटा सा स्लाइस निकाला होता है उसको माइनर सेक्टर कहते हैं। ये माइनर सेक्टर है। और सेक्टर की बेसिकली डिफ्रेंशिएटिंग पार्ट क्या है, फैक्टर चीज़ क्या है, कि उसकी जो एक एज है वो कर्व्ड होगा, जिस तरह ये यूँ। ठीक है। तो हमने मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो दैट्स गोइंग टू बी 280 ओवर। 360 into pi square. हाँ जी। R is 3. आर इज़ 3 एंड पाई इज़ गोना स्टे एज इट इज़। और इनको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है? Final, you get 7 pi. 7 पाई, बिकॉज 9 और 3 स्क्वायर आर द सेम थिंग। 7 पाई आपका आंसर है। चलिए जी, ये क्वेश्चन है वी सपोज टू फाइंड द हाइट ऑफ द कप। तो ये कप तो नहीं, ये कौन लग रही है, वाई आर दे कॉलिंग इट अ कप? ठीक है, सेम थिंग, पेपर कप है जिसको कौन की शेप में है। ठीक है, क्या करेंगे जी? The volume is given, and you will use the formula of volume of a cone to find the height. ठीक है, तो वी गोइंग टू से जी वॉल्यूम इज इक्वल टू 110, और जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का दैट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हम प्रीवियस वीडियोस में, इनफैक्ट मेंसुरेशन की वीडियोस में मैंने सारे लिस्ट ऑफ फार्मूला डिस्कस की थी कि बनते किस तरह, एंड हाउ आर दे लिंक्ड, हाउ इज अ प्रिज्म लिंक्ड टू पिरामिड्स और कोन्स। चलें, तो इफ यू सॉल्व दिस व्हाट डज इट बिकम? 8.574. We have to round it to two decimal places, so 8.57. ठीक है, और इसका रेडियस कितना यूज़ कर रहे हैं हम? 3.5. 3.5, 3.5 का भी स्क्वायर। तो दिस इज एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन बिहाइंड इट। 8.574 आपका आंसर आता है, और उसको जब आप राउंड ऑफ करोगे टू टू डेसिमल प्लेसेस बिकॉज द क्वेश्चन आस्क्स यू टू, यू कैन पुट इन अ वेवी लाइन लाइक दिस एंड राइट 8.57। कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द कप। स्लांट हाइट इज दिस, ये जो लेंथ है ना एज, ये कैसे निकालेंगे? We'll draw a dotted line in the middle. शाबाश। Then we'll use Pythagoras theorem. ठीक है, 8.574 आपने राउंडेड ऑफ आंसर नहीं लेना होता। जो प्रीवियस आंसर में फुल आंसर आया था आपका प्रीवियस सोल्यूशन में, वो लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू हो गई हमारी 3.5 बिकॉज द इंटायर डायमीटर वो 7, वो यहाँ मैंशन है। तो अभी अगर आप नोट करो तो एक ट्राइंगल बन गया, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। होल्ड ऑन,
यहाँ और यहाँ. राइट एंगल ट्राइंगल में वी कैन यूज़ 3.5 स्क्वायर प्लस 8.574 स्क्वायर और सारे का अंडर रूट. और इसका क्या आंसर आता है? 9.26. 9.26. और इसका और भी कोई वैल्यूज़ हैं या बस इतना ही है? थ्री सिग्निफिकेंट, इसके अलावा भी कोई डेसिमल प्लेसेस में आया था कि नहीं? It was 9.257. I rounded it up to ओके, 9.26. ठीक है. तो 9.257. दोज ऑफ यू वाचिंग इट ऑन यूट्यूब, 9, अब इसको आपने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर देना होता है. तो दिस 7 विल राउंड अप दिस 5 टू अ 6. ठीक है जी. वी डन विद द स्लांट हाइट. नाउ द क्वेश्चन सेज, पार्ट सी है, द कप इज कट along the line OA or it is opened out into a sector of a circle with center O and sector angle X. इसको क्या, किस चीज़ के साथ evaluate करेंगे, equate करेंगे? The curved surface area of the cone is equal to the area of the sector. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ये जो पार्ट है ग्रीन में, दैट हैज़ बिकम द एरिया ऑफ द सेक्टर. वो जब इसको कट किया गया यहाँ से, तो जब ये शेप खोल के इसका बिछाया गया ज़मीन पे, तो वो ऐसी बन गई. और जहाँ पे जाके ये ग्रीन पार्ट कहाँ चला गया है, दिस इज़ द ग्रीन पार्ट नाउ. दिस इज व्हाट यू सेइंग, राइट? Yes, sir. तो हाउ आर वी गोइंग टू इक्वेट द टू? Pi RL is equal to theta over 360 into pi square. ठीक है, पाई आर एल ये था, इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर. पाई, अब क्या क्या वैल्यूज हैं बताते हो? Pi into 3.5 हम्म. into 9.26 हम्म. is 9.257. रिमेंबर वी डोंट यूज राउंडेड ऑफ वैल्यूज. आगे? into pi 9.2257 square. अच्छा, ये जो रेडियस है, वाई इज इट 9.257? Because OA it's same as L which we found. हाँ, हमने ये भी डिस्कस नहीं किया था. ये जो लेंथ ओ ए है, ये यहाँ पे इधर आ गई है. तो ये क्योंकि हमारी वैल्यू थी 9.257, दिस हैज़ कम ओवर हेयर एज वेल. तो ये रेडियस की तरह, एक जगह पे रेडियस की तरह यूज़ हो रही है और एक जगह ये स्लांट हाइट की तरह यूज़ हो रही है. अच्छा, आगे इसको सॉल्व करें तो कैन वी कट आउट पाई विद पाई? एंड Yes. व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड बाय द वे? एंगल Angle. थीटा. तो 3.5 इंटू 9.257 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 9.257 का स्क्वायर, राइट? Yes, sir. एंड थीटा की वैल्यू क्या आती है? 136.069. ठीक है. और Rounded up. इसको हमने किस पे राउंड ऑफ करना होता है? 136.01. Three significant figures. अच्छा, एंगल्स जो है, शुड वी राउंड देम ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस? एंगल्स जो है ना, वो वन डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ होते हैं. तो दिस शुड बिकम 136.1. 1. 136.1 हमारा आंसर क्या है? ऑल्दो हम थोड़ा सा उसके आउटर एज पे जा रहे हैं, आउटर एज पे जा रहे हैं ऑफ द आंसर, बट आई थिंक समवेयर अलोंग द लाइन कहीं हमने कोई राउंडेड ऑफ वैल्यूज़ यूज़ कर दी हैं. जैसे 9.257 यूज़ किए, कैलकुलेटर में ये कंप्लीट वैल्यू डालनी है, तो फिर आप उसके आंसर की रेंज के और भी अंदर चलते चले जाएंगे. तो 136.1 से भी खैर काम चलेगा. The second cup is mathematically similar to the cup with volume 110. तो ऊपर जो क्वेश्चन में कप था, उसका वॉल्यूम था 110, 110. और एक और कप है, वो थोड़ा सा बड़ा है. क्यों, कैसे पता है मुझे कि वो बड़ा है? क्योंकि उसका वॉल्यूम वो कह रहे हैं 165 है. अब इसका डायमीटर वो 7, ठीक है. वो कह रहे हैं इसका डायमीटर कितना है, तो क्या करेंगे? 7 over x whole cube is equal to 110 over 165. ठीक है, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब. अब V1 is 110, V2 is 165, L1 is 7 and L2 which is the diameter. उसको आपने एक्सपैंड करना है. एक्सपैंड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आ रहा है हमारा? L2 8.01. 8.01. और ये फाइनल आंसर है? Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट. आई थिंक विद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, राइट? Yes, sir. ओके. तो डायग्राम शोज ये आपका जिस तरह एक शू बॉक्स होता है, वो ही शेप है. इसकी हाइट x है,
इसकी विड्थ इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट, ये विड्थ कितनी हो जाएगी? x plus 5. x+5, एंड लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 2 टाइम्स द विड्थ, तो ये कितनी हो जाएगी? x plus 5 into 2. अच्छा, राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर विड्थ एंड लेंथ, आई थिंक वो हमने ऑलरेडी लिख दिया ऊपर, ऐसे ही है। Yes, sir. नाउ द एक्सटर्नल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को डिफाइन करने का तरीका क्या है? अब सम स्टूडेंट्स स्टिल डू नॉट नो अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट. इट इज़ all the surfaces that you can remember this: touch, paint or see. ठीक है, इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि क्या मैंने करना क्या। अच्छा, अब ओपन बॉक्स तो नहीं है, ओपन बॉक्स है, तो मतलब है आपका ऊपर ये वाली जगह डजेंट एग्जिस्ट, बॉक्स को ओपन कर दिया कि आपने ये एरिया निकालना है, वो राइट वाला, वो बेस वाला, और वो जो बैक पे है, वो जो बैक पे है वो वाला। ठीक है, तो हम फॉर्मूला का क्या लिखेंगे? 2 We 2 into length height plus 2 into width height plus length width. We won't multiply length and width with 2. ठीक है, ठीक है, तो पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हमें एक की वैल्यू पता हो। 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज बेसिकली 2 इंटू एक्स प्लस 10। इसको अब some of the those people watching might not be able to relate to what we are saying about the formula, तो बेसिकली शेड कर लेते हैं इसका, इस ग्रीन पार्ट का और इस ग्रीन ग्रीन पार्ट का। अगर हमने इकट्ठा एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? व्हाट आर वी गोइंग टू से? 2 into length height. हाँ, तो बेसिकली x इंटू एक्स प्लस 5, राइट, x इंटू एक्स प्लस 5, और ये जो भी आंसर आएगा इसको टाइम्स 2. 2। तो आपको ये दोनों ग्रीन पार्ट्स आ गए। अब अगर हमने इसका एरिया निकालना है ऑफ द पिंक पार्ट विच इज़ दिस वन एंड वन एट द बैक, वो वाला, तो इनका कैसे निकालेंगे? 2 into length height. 2x plus 10 into x into 2. ठीक है, तो +2 टाइम्स, यहाँ पे हम एक डायमेंशन तो ये यूज़ करेंगे 2x+10, और साथ एक डायमेंशन यूज़ करेंगे x, तो 2x+10 इंटू एक्स। और जो थर्ड डायमेंशन है विच इज़ द वन एट द बेस, इसको भी क्या टाइम्स 2 करेंगे? No. वाई? बिकॉज इट इज़ एन Open box. ओपन बॉक्स, तो ये ऊपर नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसको, इस डायमेंशन को हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है विद 2x+10 इंटू X plus एक्स 5. प्लस फाइव, एंड वी वुड नॉट मल्टीप्लाई इट विद 2। एंड उन्होंने कहा इसका Equal to हाँ एरिया कितना है? 210. 210, इसको इज इक्वल टू 210 पुट कर दिया। नाउ इफ यू सॉल्व दिस फर्दर, व्हाट डज इट बिकम? The final answer. फाइनल आंसर तो खैर इक्वेशन आई थिंक गिवन है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन अ लिटिल बिट और फिर विल बी एबल टू टेल द व्यूअर्स व्हाट्स हैपनिंग। तो 2x² प्लस 10x, और अगर इसको एक्सपेंड करें व्हाट वुड दिस बिकम? 2x square plus 10x plus 10x plus 50. शाबाश। अब इसको फाइनल एक्सपेंशन करते हैं। 2x² प्लस 10x प्लस 4x² प्लस 20x प्लस 2x² प्लस इन दोनों को कंबाइन कर दिया 20x प्लस 50 इज इक्वल टू 210। 2 4 एंड 2 व्हाट डज डू बिकम? 8x 8. प्लस 50x 50x प्लस plus 50 50. इज इक्वल टू 210। अब क्या करेंगे? 210 will go on the other side. 210 will go over here, तो 8x² प्लस 50x प्लस 50 माइनस 210 इज Minus 140. -140। अभी भी ये नहीं बना, क्या करें? Minus 160. अच्छा, what will we do now? We'll divide the all the values by 2. We'll divide everything by 2, तो अगर हम 2 फैक्टराइज कर लें तो it will become 4x² plus 25x minus 80, 80. and this 2 now will go over there, get divided by 0, और वो Yes. that becomes negligible। यहाँ basically 0 divided by anything is 0, so 4x² plus 25x minus 80 is equals to
0, वही जो उन्होंने कहा था शो करने का हमने सक्सेसफुली शो कर दिया. तो आई थिंक दैट मार्क्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज दैट वी सॉल्विंग अंडर मेंसुरेशन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बकाया क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्ली अराउंड 7 और 8, और फिर लास्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कि हम सारे इकट्ठे कंप्लीट कर दें. सो दिस इज़ अ 3 पार्ट सीरीज ऑफ मेंसुरेशन. और वंस अगेन इसका PDF वर्जन डाउनलोडेबल लिंक में मैं लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर.